السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. بہت جلد ملتے ہیں. انشاءاللہ. السلام علیکم وسیم، خوش آمدید. ابو، امی، یہ وسیم ہے. آؤ بیٹا، اندر آؤ. جب وسیم کی بیٹی پیدا ہونے کے بعد جیسے ہی ہسپتال سے چھٹی ملے گی، ہم اپنے نئے پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ ایک ساتھ گھر جائیں گے. میں آپ کے اور ہمارے بچے کے ساتھ رہنے پر بہت خوش ہوں. ہاسپٹل میں اور سوشل ورکر جو انوالو ہوا، This is my husband and I am going with him home, so no one can stop me. You will definitely go with me and not with your husband. اور اس نے زبردستی آفی اور وسیم کی بیٹی کو لے کر اپنے ساتھ لے گیا کیئر ہوم میں، اور وسیم روتے روتے اکیلا گھر واپس پہنچا. بڑا درد سے بھرا ہوا تھا، اس کے آنسو گر رہے تھے اور رو رہا تھا کہ یہ کیا ہوا. کتنا وہ خوش تھا، اس نے سارے انتظام کر کے رکھے تھے، یہاں تک کہ اس نے نیپیاں خریدی تھی، دودھ کی بوتل خریدے تھے، بیبی کے لیے کپڑے خریدے تھے، ٹاولز خریدے تھے، باقی جو پاؤڈر وغیرہ یہ سب کچھ، یہاں تک کہ اس نے نیا بیبی کوٹ بھی خریدا تھا. وہ سارا انتظام اس نے کیا ہوا تھا. بڑا خوش تھا، ساری چیزیں اس نے گھر میں سیٹ کی تھی کہ اب آفی ڈسچارج ہوگی ہاسپٹل سے، میری بیٹی جو پیدا ہو گئی ہے تو میں لے آؤں گا ان دونوں کو گھر. تو میری بیٹی اس بیبی کارٹ میں ہوگی، اور سارا سامان کمرے میں سجا کے رکھا تھا. لیکن ان ظالموں نے اس کی ساری خوشی ایک غم میں بدل دی. اب یہ اکیلا بیٹھا ہوا رو رہا ہے. یہ کوئی غالباً دن کے 3-4 بجے کا ٹائم تھا، شام کے، جب وہ سوشل ورکر وہ لے گیا آفی کو اپنے ساتھ. حالانکہ اس کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی، اس نے ٹیکسی منگوایا تھا. تو وسیم اپنی گاڑی میں اکیلا گھر آیا. اب یہ شام تک بیٹھا ہوا ہے، نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، غم دکھوں سے بھرا ہوا ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے. یہ کیسے ظالم لوگ ہیں، کیوں اتنا ظلم مجھ پہ ہر طرف سے کیا جا رہا ہے. میرا کیا گناہ ہے؟ پہلے مجھے اریسٹ کر دیا گیا، 1 نہیں 2 بار بلا وجہ. میری بے عزتی کی گئی، مجھے ذلیل کیا گیا. پھر اس کے بعد اب مجھے ایک تھوڑی سی خوشی ملی. میں نے اپنی خود محنت کی، اپنی بیوی کو ڈھونڈا اور اسے دوبارہ عزت و احترام کے ساتھ واپس لے آیا. کیا تم اب خوش ہو؟ جی ہاں، میں بہت خوش ہوں. اس سے کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں کیا، اس کو میں نے معاف بھی کر دیا. اب میری بیٹی بھی پیدا ہو گئی. 10 دن میں ہاسپٹل میں ان کی خدمت کرتا رہا اپنی بیوی کے. سب دیکھ رہے تھے، پھر بھی ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. پھر بھی میں ایک خطرہ ہوں اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے. یہ کون سا ہارم ہوگا میرے سے، جو وہ کہہ رہا تھا سوشل ورکر کہ we are child service, we are children service and your baby could be harmed. She can go alone with you, leave the baby in the hospital, or she has to go with me. یہ کیا ہے؟ تو الغرض یہ کافی پریشان تھا، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس سے نہیں معلوم تھا، نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ اپنا دکھ کس کے ساتھ شیئر کرے. کوئی بھی نہیں تھا اس کو سننے والا، اس سے بیٹھ کر باتیں کرنے والا، اس کی مدد کرنے والا، اس کی حقیقت کو سمجھنے والا. نہ اتھارٹیز نہ کوئی اور. بالآخر رات ہو گئی،
कोई 8 बजे का टाइम होगा। एकदम से इसके मोबाइल फ़ोन पे घंटी बजी। एकदम इसको झटका लगा, हैरान हुआ कौन मुझे फ़ोन कर रहा है। जब से उठाया उधर से आफ़ी थी। ओह, इसकी जान में जान आ गई। बड़ा खुश हुआ क्योंकि ये समझ चुका था उस वक्त, उस टाइम हॉस्पिटल से, कि इसको इन्होंने दोबारा अभी तो इस तरह गायब करना है कि इसकी आवाज़ मैं फिर कभी सुन भी नहीं सकूँगा, क्योंकि इन्होंने पहले गायब किया था और मैं ढूंढ के निकाला था। इस दफ़ा तो ये पता नहीं क्या करेंगे इसके साथ। पूरा नाउम्मीद हो चुका था अपनी बीवी को आगे इसके बाद देखने से और उससे बात करने से। लेकिन आफ़ी का फ़ोन आ गया। बड़ा इसको झटका लगा और खुश भी हुआ। एकदम इसने उठाया, हाँ आफ़ी, कहाँ पर हो तुम, कहाँ से बात कर रही हो, बेबी कैसी है? उसने कहा हाँ हाँ हाँ, पता है मैं क्यों मैंने फ़ोन किया। ये मुझे लाकर एक पुराने सड़े हुए घर में, बदबूदार कमरे में डाल दिया इन्होंने। यहाँ एक घर है ये, और यहाँ और लोग भी दूसरे कमरों में उधर रह रहे हैं। उनका शोर शराबा भी आ रहा है। लगता है कि सारे मर्द हैं वहाँ पर, और मुझे अकेली औरत को इस बेबी के साथ एक कमरे में डाल दिया, और मैंने दरवाज़ा बंद करके अभी अंदर मैं बैठी हूँ। इस कमरे में कुछ भी नहीं है, और एक बेबी कोट पुराना सड़ा हुआ एक औरत थी इंडियन, जो यहाँ काम करती है, जिसको सोशल वर्कर ने एडवाइस किया कि इसका ये जो कुछ मांगे इसको दो, इसका ख्याल रखो। तो उसने, जब उसने सोशल वर्कर ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया, वो तो ख़ुद चला गया। अब मैं इस औरत के हवाले हूँ। ये मुझे इस कमरे में ले आई, और फिर जाकर इसने मुझे कहा कि मैं बेबी के लिए एक बेबी कॉट अभी लाऊंगी, तो अपने बेबी को उसमें सुला दो। तो वो थोड़ी देर बाद वो वापस आई। वो एक पुराना सा बेबी कॉट लेकर आया, और उसमें एक गधेला पड़ा हुआ था, जो कि उसके ऊपर पहले बच्चे सोए थे और बहुत सारा पेशाब किया हुआ था। अभी पेशाब का बदबू अभी तक भी आ रहा था, बहुत ज़्यादा। तो वो रखा, कहते इसमें बेबी को सुलाओ। तो मैं उसमें अपने बेबी को किस तरह डाल सकूं? अभी तक बेबी मेरी गोद में है, और वो बच्ची रो रही है, भूखी है, उसको दूध चाहिए, और मैं अपना दूध दे रही हूँ, लेकिन उस पर से इसका गुजारा नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे पास इतना दूध नहीं है। वो 1-2 कतरे से उसका पेट नहीं भर रहा। वो मैंने दे दिया, अभी वो रो रही है, उसको अभी बोतल चाहिए। वो औरत तो गायब हो गई। अभी उसने नंबर तो दिया था उसको, मैं फ़ोन करती हूँ, ये पता नहीं उठाती नहीं है, या उठा कर कहती है कि अभी तो रात हो गई है, तुम सो जाओ, सुबह फिर मैं आऊँगी तो तुम्हें जो चाहिए मैं दूँगी। लेकिन ये सारी रात मैं कैसे गुजारूँ? ये बेबी तो रो रही है, बच्ची रो रही है सारी रात, मेरे पास थनों में दूध नहीं है, और यहाँ इसने कुछ भी नहीं दिया। मुझे भी खाने के लिए उसने कुछ नहीं दिया, मैं खुद भी भूखी हूँ। वो हॉस्पिटल में जो तुमने खाना ला कर दिया था वही है बस, उसके बाद इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। ये जुल्म ये लोग कर रहे हैं। ये बेबी केयर है, ये चाइल्ड केयर है, ये इंसानों का केयर है, ये केयर होम है जो ये ले गए। ये इस तरह इनको गम है बच्चों का, ये कर रहे हैं। अब ये हकीकत तो हर एक को नहीं मालूम होता ना। ये तो वसीम की मेहनत थी, जो एक एक चीज़ को उसने कुरेद कर देखना शुरू किया, और इसमें आफ़ी ने उसको बहुत सारा सपोर्ट दिया, क्योंकि वो उससे मिलती रही और उसको बताती भी रही। एक एक चीज़ जो होता था वो बताती थी। तो इसलिए वसीम को सब कुछ मालूम है। इसका डार्क साइड अभी वो वसीम अच्छी तरह से जानता है। शायद बहुत सारे फैमिलियाँ ये नहीं जानती हूँ, और नहीं जानते, उनको क्या पता है। तो वसीम ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो अब मुझे बताओ, मुझे तो तुमने और भी ज़्यादा परेशान कर दिया, अब बताओ मैं क्या करूं? आफ़ी ने कहा कि मुझे आ जाओ मेरे पास अभी।
तुम्हारा आना ज़रूरी है। तो वसीम ने पूछा, तुम्हें मालूम है तुम कहाँ हो? आफ़ी ने कहा, मैं इतना समझती हूँ कि हॉस्पिटल से ज़्यादा दूर नहीं है। वो टैक्सी में ज़्यादा 10-15 मिनट लग गए, यही आस पास ही है। अब इलाके का नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं लोकेशन तुम्हें गूगल मैप में भेजती हूँ और तुम खुद देख लेना। तो इस लोकेशन पे आ जाओ, घर का नंबर मैं जानती हूँ, घर का नंबर ये है। उसने घर का नंबर बता दिया और लोकेशन भेज दिया। वसीम ने फ़ोन पे देखा, उसको समझ में आ गया कि कौन सी जगह है। उसने कहा, हाँ आफ़ी फ़िक्र मत करो, ये ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे घर से 20 मिनट लगेंगे, मैं पहुंचूंगा। तो जब 20 मिनट बाद जब मैं वहाँ पहुंचूं तो मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा, तो तुम बाहर निकल आओ। आफ़ी ने कहा ठीक। ये एकदम गाड़ी लेके चला गया वहाँ पर। वहाँ एक जगह देखा, एक सुनसान इलाका है, रात का वक्त है, कोई भी नहीं है, बस खाली लाइटिंग जल रही है, स्ट्रीट लाइट्स है, कोई लोग आ जा नहीं रहे। लेकिन वसीम समझ गया ये वो इलाका है जो जो है यहाँ ज़्यादातर इंडियंस की आबादी है। वो अक्सर सारे इंडियन वहाँ रहते हैं, सिख और हिंदू ये लोग रहते हैं, अक्सर सिख ही रहते हैं वहाँ पर। तो वो इलाका था। वो औरत, वो जो केयर होम वाली थी, वो भी एक सिखनी थी। तो यही ब्लैक सिस्टर, ये सारे एक ही है, ये भी तो इंडियन है सारे। तो वो अपने लोग ढूंढते हैं इन्हीं कामों के लिए, और अपने लोगों के घरों को वो किराए पे ले लेते हैं, वो केयर होम उसको बनाते हैं। वो किसी का पुराना सड़ा हुआ घर होगा, खाली पड़ा होगा, अबेंडेंड होगा, वो लेकर किराए पर अभी उसको केयर होम बनाया हुआ है। कोई अलहदा से गवर्नमेंट का बना हुआ कोई बाकायदा पूरा इंतज़ाम के द्वारा सिस्टमेटिक केयर होम नहीं था, वो बस यही था। अब अक्सर लोग ये नहीं जानते, वो समझे केयर होम पता नहीं क्या होगा, कौन सी जन्नत होगी, कितनी फैसिलिटीज़ उसमें होंगे, बच्चे ऐश कर रहे होंगे, झूले होंगे और तमाम खिलौने होंगे, स्विमिंग पूल होगा और टेलीविज़न होगा और तमाम आसाइश बच्चों के लिए मुहैया होंगे। वो तो अपने माँ बाप को भूल जाएंगे, वो इतना खुश होंगे यहाँ पर। और वहाँ जो साथ जो वो औरतें होंगी, जो उसके केयरर जो होंगे, वो भी इनका बहुत ख्याल रखती होंगी, बहुत प्यार करती होंगी, किस्म किस्म के खाने, फ्रूट, सब जूस सब पिलाते होंगे, देते होंगे, खिलाते पिलाते। लोग तो शायद इस तरह समझते हैं, नहीं ये है केयर होम। अब जो भी मेरा ये वीडियो देखे उसको पता चले कि कौन सा केयर होम होता है, ये है केयर होम, जिसमें अभी हॉस्पिटल से निकली है। अभी तक उसको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किया था वहाँ, और कि ये तुम लेती रहो, क्योंकि वो ज़ख्मी भी हुई थी वो बर्थ में। तो वो नेचुरल जो मतलब है, जो भी प्रोसेस था, वो वसीम तो खड़ा था, उसने देख लिया, उसको पता था क्या हुआ है इसको। तो वो उसकी वजह से एंटीबायोटिक भी वो ले रही थी। तो अभी वो उसको दर्द भी है अपना, एंटीबायोटिक्स भी ले रही है। उसको लाकर यहाँ इन्होंने फेंक दिया। बड़ी अफसोस की बात। मैं उम्मीद करता हूँ कि यही सोशल सर्विसेज मेरा ये वीडियो देख ले और पूरी दुनिया देख ले। इनका डार्क साइड ये है। तो बहरहाल वसीम वहाँ पहुँचा, उसने एकदम फ़ोन किया, वो घर नंबर उसको पता था, उससे थोड़ा हटकर गाड़ी वहाँ उसने खड़ी की, खुद भी थोड़ा हट के खड़ा हुआ, फिर फ़ोन किया। तो वहाँ से देख रहे उस डोर को। तो थोड़ी देर बाद आफ़ी निकल आई, बेबी उसके साथ। वसीम ने जब देखा एकदम उसकी तरफ गया, बेबी को उससे उठाया। आफ़ी खुद दर्द की वजह से उसके लिए चलना भी मुश्किल था, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। बहरहाल इसने आफ़ी से कहा कि अब मैं तुम्हारे लिए यहाँ कुछ जाकर दूध वगैरह, सौदा जो भी तुम्हें चाहिए, खाना, ये सब अभी दोबारा जाकर कहीं स्टोर से ख़रीद कर लाकर दोबारा पहुँचा दूँ। आफ़ी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने घर जाना है, मुझे इस वे ना बेबी सो सकेगी ना मैं।
इतनी सड़ी हुई जगह, इतना सड़ा हुआ फर्नीचर और बेबी कार्ड पेशाब से भरा हुआ, वो तो ये बच्ची मर जाएगी इधर, मुझे इधर नहीं रहना है। जो भी ये बाद में करेंगे इनको मालूम होगा मैं किधर गई, यहाँ क्यों नहीं थी। तो वो मैं अभी मुझे अपने आप को बचाना है। मैं खुद दर्द से अभी इतना दर्द मुझे शदीद हो रहा है, मैं अपना दर्द मुझे आराम करना चाहिए, मुझे अपना घर वाला बेड चाहिए। अब देखो ये गलती अगर आप ही पहले ना करती तो ये चीज़ें वो फेस ना कर रही होती। एक वीज़े की खातिर अब ये सारा हो रहा है, सिर्फ एक वीज़े उसको चाहिए था, उसने ये सारा ड्रामा बनाया था, अपने हस्बैंड को भी मुसीबतों में डाला। अभी वो बेबी पैदा हो गई, वो उसकी पैदाइश से वो नई बेबी पैदा हो गई, वो भी मुसीबतों में पैदा हो गई, उसके लिए भी मुसीबत शुरू हो गए। ये जुल्म, इसकी गलती और उनका जुल्म, इसकी नासमझी और उनका फोर्स, ये हो रहा था। तो उसने कहा मुझे अभी बस मुझे सीधा घर ले चलो। अब ये वो तो वो यहाँ तो वो दूसरे लोग रह रहे, वो तो पता नहीं कौन है, उनका तो कोई काम नहीं है। वो मुझे उनकी शक्लें मैंने देखी नहीं, आवाज़ें आ रही कि मर्द है बोल रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से वो भी बोल रहे हैं। तो पता नहीं शराब पिए हुए नशे में इस तरह वो जैसे वो झगड़ रहे आपस में, इस तरह उनकी गुफ्तगू में सुन रही थी। तो ऐसी जगह में मुझे डाला हुआ है, मुझे डर भी लगता है कोई ये मर्दों में से कोई आ ना जाए मेरे कमरे में, मुझे ले चलो। तो वसीम ने कहा ठीक, बात तो बिल्कुल माकूल है, आगे जो होगा बाढ़ में जाए देखा जाएगा, चलो घर। नाजायज़ तो ये कर रहे हैं, वैसे ही ज़ोर ज़बरदस्ती हो रहा है। तो चलो, हम कोई कानून नहीं तोड़ रहे, कोई गलत काम नहीं कर रहे, कोई जुर्म नहीं कर रहे। मैं आया हूँ कि तुमको सपोर्ट करो, बस। वो घर ले गया, घर पहुँच गए वापस। तो उसने खुद ही जाकर एकदम वो बेबी सारा सामान तो उसने पहले से रखा हुआ था, वो तो मौजूद था। तो आफी ने भी एकदम दूध बना लिया, बोतल में डालकर, नया बोतल पैकिंग से खोलकर उसने बेबी को दे दिया। बेबी ने जब पिया, पेट भर गया, आराम से सो गई, नए बेबी कॉट में सो गई। वसीम की ये ख्वाहिश तो पूरी हो गई, वो अपने बेबी कॉट में सो गई जिसके लिए उसके बाप ने ख़रीदा था। तो वसीम बड़ा खुश हो रहा था, देख रहा था। तो आफी के लिए उसने जल्दी से किचन में जाकर कुछ खाना तैयार किया। बहरहाल वो इतना खाने वाले नहीं थी, वो खुद ही दर्दों में थी। तो थोड़ा बहुत उसने जो खा लिया तो खा लिया वो। फिर वसीम ने कहा कि जाओ अब तुम सो जाओ, फिर सुबह मैं ऐसा करता हूँ। तो वसीम ने उसे पूछा, अच्छा अब क्या ख्याल है, उधर वापस जाना है? कहते हाँ जाना तो है, दिन में वो आएंगे तो मैं वहाँ नहीं होऊंगा तो वो मुसीबत तो फिर खड़े करेंगे, वो तो फिर मुझे वो ढूंढेंगे, फिर पुलिस मुझे ढूंढेगी, फिर तो पुलिस इधर पहुंचेगी और मुझे बेबी के साथ पकड़ के वो ले जाएंगे और गायब कर देंगे और तुम्हें अरेस्ट करेंगे। वसीम ने कहा हाँ बात तो बिल्कुल सही है, ऐसे ही करेंगे। तो फिर तुम बताओ मैं क्या करूँ? कहा मुझे सुबह सवेरे वहाँ छोड़ देना, अभी मैं सोऊंगी, सवेरे मुझे उठा देना, सूरज निकलने से पहले मुझे उधर पहुँचाओ, अंदर रोशनी होने से पहले भी मुझे, मैं बस 2-3 घंटे सोऊंगी यहाँ। वसीम ने कहा ठीक है। वसीम ने भी ऐसे ही किया, फिर वापस वहाँ सुबह सवेरे पहुँचा दिया बेबी के साथ। अब बेबी ना डॉक्टर के पास रजिस्टर्ड, न आफी डॉक्टर के पास रजिस्टर्ड। अब उस इलाके में तो वो रजिस्टर, यहाँ तो ऐसा है कि जिस इलाके में आप रह रहे होंगे उसी इलाके के जीपी के साथ लोग रजिस्टर होते हैं, डॉक्टर उनका, उसका अभी कोई डॉक्टर नहीं है, किसी के साथ रजिस्टर्ड नहीं। जब वसीम उसको लेकर आया था, उसने एकदम उसको अपने डॉक्टर के, जहाँ वो रहता है, अपने डॉक्टर के साथ वो ले जाकर जीपी सर्जरी में उसको रजिस्टर करवाया था। लेकिन वो तो ख़त्म हो गया क्योंकि ये भाग गई, फिर वो न्यूपोर्ट में थी 6 महीने, सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी उसका कोई डॉक्टर नहीं है, कोई जीपी नहीं है, किसके पास जाए अपना दर्द की शिकायत करे?
उन्होंने इसकी कोई केयर नहीं की, कोई परवाह नहीं की, किसी जीपी के साथ इसको इमरजेंसी में रजिस्टर नहीं किया, बस पड़ी रहो इस तरह। अब वसीम है जो केयर करता है, वो रात में जाता है, या तो कभी इसको सामान वगैरह पहुंचा देता है या कभी ले आता है। ज़्यादातर इसने कहा कि ये इसमें ज़्यादा में हर रात ले जाना भी मुनासिब नहीं होगा, तो ये देखेंगे तो मुसीबत खड़ी करेंगे, कोई बता देगा, तो मैं बस सामान पहुंचाता रहूँगा, तुम्हारा ख्याल तुम अभी जब भी मसला हो बस में फ़ोन किया करो, बस मैं जो चाहिए मैं पहुंचाता हूँ। तो ग़ालिबन 1-2 हफ़्ते उन्होंने 2 या 3 हफ़्ते वहाँ पर रखा था, उसके बाद फिर किसी और जगह ट्रांसफ़र कर दिया। फिर वहाँ भी वसीम पहुँचता रहा, फिर वहाँ थोड़ी कुछ अर्सा रखा, फिर उसके बाद इसको उन्होंने बाकायदा से फिर एक फ़्लैट दे दिया। ये फ़्लैट अच्छा था, तो प्राइवेट था, किसी प्राइवेट लैंडलॉर्ड से उन्होंने रेंट किया था, लोकल अथॉरिटी ने इसको दे दिया था, वो अच्छा था। अभी इसको सहूलत उन्होंने दे दिया, यानी इतना ये पिछले चंद हफ्ते तो अगर वसीम ना होता तो ये शायद दोनों मर जाते। यानी शुरू में से कोई केयर नहीं था, उनके पास भी सारा बंदोबस्त होता नहीं है, लोगों को उठा कर तो ले जाते हैं, फिर ख़ुद परेशान होते हैं अभी इनको कैसा सपोर्ट दें, किस तरह उसके अरेंजमेंट करें, इस तरह से है। अब ये आफ़ी भी समझ चुकी थी, वसीम भी सब, आफ़ी तो देख रही थी, उसी भी तो थी, और वसीम भी देख रहा था, वो भी समझ रहा था कि ये है इनका सर्विस। वो आहिस्ता आहिस्ता करके फिर वो ढूंढते हैं, फिर वो अरेंज करते हैं, फिर वहाँ से वो फंड लेते हैं, क्योंकि वो जगह रेंट करेंगे तो उसका भी किराया देना होगा, तो वो अरेंज करते हैं। वो अरेंजमेंट में फिर पेपर वर्क में टाइम लगता है, फिर वहाँ से अप्रूवल आती है, तो तब तक जिसको वो पहले उठा कर ले जाते हैं वो जलील और ख्वार हो जाता है, ऐसे इस तरह है। तो बाद में फ्लैट दे दिया, इसमें कोई मेरे ख्याल में 2 महीने लग गए थे। 2 महीने से आफ़ी इस तरह रुल रही थी, कभी इधर कभी उधर, तो बच्ची के साथ। अब फ्लैट मिल गया, आफ़ी ने फ़ौरन बता दिया कि ये है फ्लैट। तो वसीम ने भी जाकर देखा, जगह अच्छी थी, छोटा सा था, 1 बेडरूम का था, लेकिन साफ़ सुथरा था, बहुत अच्छे लोकेशन में था, उसी हॉस्पिटल के करीब था जहाँ इसकी डिलीवरी हुई थी। तो अब वसीम ने आफ़ी को कहा कि ठीक है, अब ऐसा करते हैं, यहाँ भी एहतियात से काम लेंगे ताकि किसी को फिर पता ना चले। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं रात में आया करूँगा, मैं तुम्हारे साथ इधर ठहरूँगा, हर रात यहीं सोऊंगा, सुबह सवेरे मैं यहाँ से जाया करूँगा। तो रात में जब मैं आऊँगा उस वक्त मैंने पहले से जो है शॉपिंग किया हुआ होगा, जो चीज़ तुम्हारी ज़रूरत की होगी, तुम्हें चाहिए होगी, वो दिन में मैं शॉपिंग सारा करके गाड़ी में रखा होगा। तो रात को मैं गाड़ी निकाल के इधर ले आता हूँ, कहीं पार्क करके फिर इधर आ जाता हूँ। वहाँ भी कैमरे लगे हुए थे, तो प्राइवेट, लेकिन कैमरे लगे हुए थे ताकि कोई इस फ्लैट में, शायद और भी उस बिल्डिंग में ऐसे फ्लैट्स होंगे जो औरों को भी इन्होंने डाला हुआ है, पता नहीं था, तो इसलिए कैमरा सिस्टम था, सिक्योरिटी सिस्टम था। अब वसीम जाता था, क्या करता, तो अभी कैमरे में आता है नहीं आता है, तो उसने तो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को और बेटी को सपोर्ट तो करना था। तो वैसे भी वो रात को वहाँ अकेली होती, चाहे फ्लैट अच्छा था, चाहे सिक्योरिटी सिस्टम था, उसके बावजूद भी लोग जब ये जान जाते हैं कि यहाँ बिल्कुल एक औरत, जवान औरत और एक बेबी के साथ अकेले रह रही है, कुछ दिन बाद नोटिस करे तो ऐसे फिर लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो ये ख़तरा तो हर जगह होता है जवान औरत के साथ, अगर उसके साथ अपना मर्द नहीं हो। अब ये शऊर इन लोगों को तो है नहीं, इनको परवाह भी नहीं है, इनको इस चीज़ से क्या है, वो तो ठीक है चलता है, कोई दूसरे मर्द इसको अटैक करे इसके ऊपर, वो ठीक है चलता है, बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी इसको अपने खावन से अलहदा रखो, ये है।
गेम इस तरह चलता है। अब वसीम जाए हर रात वहाँ पर, वो लैंडलॉर्ड जो था उसने कहीं नोटिस किया था कि एक शख्स आता है, ये इसका हस्बैंड है, ये आता है, इससे मिलता है, इसने पता जो है एड्रेस बता दिया है इसलिए वो आता है। उसने फ़ौरन शिकायत की, कंप्लेन कर दिया, वो लोकल अथॉरिटी को, सोशल सर्विसेज को बता दिया या सोशल वर्कर को बता दिया, क्योंकि सोशल वर्कर भी आता रहता था, कभी इसके पास दिन में ऑफिस से मिलता था। तो उसने बताया हुआ कि देखो ठीक है, आपने इसको इस जगह में डाला हुआ है, मेरा फ्लैट है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे एक शख्स मिलने आता है, तो मुझे यकीन है वो इसका हस्बैंड ही है और कोई हो नहीं सकता। अब उनको झटका लगा, सोशल वर्कर या सोशल, जिसे उसने पता नहीं डायरेक्ट उनको फ़ोन करके बताया था या सोशल वर्कर जब इधर आया तो उसको बताया था, तो उसने ये बता दिया था। झटका लगा कि ओह ये तो अजीब बात है, यानी वो 2 महीने जो इधर जो इस तरह वो पहले दिन जो उसने हॉस्पिटल से निकाला और वहाँ वो सड़े हुए रूम में डाला और ये मिल रहे थे, ये उनको इसका कोई पता नहीं चला। ये अभी किसी ने बाकायदा बता दिया इसलिए तो पता चल गया। दूसरे दिन वसीम देखता है आफी वहाँ से गायब, उसे फ्लैट से निकाल के दूर जाकर गायब कर दे, किसी और जगह में डाल दिया। और वहाँ, यहाँ तो अकेली थी, वहाँ अभी क्योंकि उनको भी अभी आफी पे ट्रस्ट नहीं था कि तो देखो जहाँ इसको अकेला डाल दो, ये तो अपने हस्बैंड से मिलती है, उसको बुलाती है या खुद जाती है, तो ये ठीक नहीं, इसको कैरर के साथ रखो, कैरर होगी तो फिर जो है ये इस तरह नहीं कर सकेगी। तो उसको दूर जाकर, कोई मेरे ख्याल में 20-25 माइल दूर उसी एरिया से या वसीम के घर से लंदन के वो दूसरे कोने में, वहाँ एक जगह एक ब्लैक काली औरत थी, बदशक्ल। वसीम ने उसको वीडियो पे देखा था, तो वहाँ डाल दिया कि उस काली को कहा कि अभी इसका ख्याल रखो, ये इस बेभरोसे है, इस पे कोई भरोसा नहीं है, ये तो एकदम अपने हस्बैंड को हर जगह बुलाती है या खुद उसके पास जाती है, तो ये तो मिलते रहते, हम चाहते हैं कि ये ना मिले। वो न्यू पोर्ट में भी ये मिलते रहे। इसने वो बता दिया, वो जाकर उसको ले आया, फिर अपने घर में रखा, और यहाँ भी इसको हमने फ्लैट दे दिया, और यहाँ भी उसने बता दिया, वो आता रहता था, तो इसलिए अभी इसको हम कोई फ्लैट नहीं देंगे, कोई अकेली जगह नहीं देंगे, ये तुम्हारे साथ रहेगी, और हो सकता है ये फिर मिले, तो तुम ख्याल रखना। वो काली ऐसे कि जालिम, ऐसे बदअखलाक औरत थी, क्योंकि उसके कुछ आर्गुमेंट वसीम के साथ वीडियो पर हुई थी, तो बाद में उसके साथ डाला। अब ये वहाँ पर है, अब वो किधर कंटैक्ट के लिए छोड़ रही है। अब सोशल सर्विसेज ने क्या अरेंज किया, वसीम को अपनी बेटी को किस तरह देखे, उससे किस तरह मिले, क्योंकि ये बेटी को तो गायब नहीं कर सकते, वो तो बाप का हक है, वो तो ये भी कहते हैं कि बच्चों को बाप देख सकता है, अब बीवी को नहीं देख सकता, बीवी गायब हो जाए बस, उससे बात ना करें। अब उसकी औलाद है, उसके उनके ऑब्जर्वेशन में, उनके हिसाब से फिर वो जिस तरह अरेंज करे, फिर वो बाप देख सकता है, जितना वो टाइम दे वो उसी के ऊपर है। तो उन्होंने उस वक्त तो वो वीडियो लिंक अरेंज किया, वो स्काइप का था, वसीम के पास भेजा उसका लिंक कि ये, वो भी उसको एकदम नहीं, वहाँ उस कैरर के पास जब डाला, उसके भी पता नहीं कई हफ्तों के बाद फिर उस सोशल वर्कर ने एक रोज़ उसको फ़ोन करके
या ईमेल भेजा, ये फ़ोन तो नहीं करता था, ईमेल भेजता था। ईमेल किया था उसने वसीम को कि हमने अरेंजमेंट किया हुआ है, तुम्हारे और तुम्हारे बेटी के कॉन्टैक्ट है कि तुम अपने बेटी को देख सको, ये वीडियो लिंक है, तो ये तुम जाकर इसको इस पे क्लिक करो और इस टाइम कर लेना। वो टाइम बताया था, तो जब इस टाइम क्लिक करोगे तो उधर तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने वो कैरर लाएगी, तुम्हारी बीवी नहीं होगी, वो कैरर होगी, तो वो उधर रखेगी, तो बेबी कॉट में होगी, तुम देखते रहना। और ये 15 मिनट का है, और ये हफ्ते में सिर्फ एक दिन है। ये उन्होंने ये अरेंजमेंट किया, हफ्ते में सिर्फ 15 मिनट, हफ्ते में सिर्फ एक बार था, और सिर्फ 15 मिनट के लिए, वो भी वीडियो लिंक के ऊपर, स्काइप के ऊपर वो अपने बेटी को देख सकता था, बस खाली वही इतना था। फिर वो कैमरा बंद करके उठाती थी। तो इस तरह से ये सिलसिला कई महीनों चलता रहा। अब उसके बाद क्या हुआ, इसको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बहुत मज़ेदार और सबक आमूज़ स्टोरी है, बिल्कुल जेन्युइन हकीकी, जो ज़िंदगियों में लोगों के साथ ये मामलात हो रहे हैं, ना हर एक के साथ, कुछ लोगों के साथ। तो ये उसमें से एक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा अगले किस्त में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं उस्मान खान हूँ। मैं सच्ची कहानियों पर मबनी वीडियोस बना रहा हूँ जो ज़िंदगी में वाकई हो रही हैं। माई कॉन्टेंट इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आप इस किस्म की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं और ये देखना चाहते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगियों में जर्बात कर रहे हैं, तो आप उन्हें मेरे YouTube चैनल्स पर देख सकते हैं, क्यूसिस तारीखी कहानियाँ एंड हिस्ट्री पैनल इन इंग्लिश।